Good morning, everyone. Before I begin, I do like to ask you a few questions. Like, imagine that if you are driving home after work and suddenly you witness, a serious road accident. What will be the first thing you do? I mean, I'm talking about a serious accident here. Obviously it's very clear that you will call police or perhaps an ambulance, right? So now imagine that instead of an accident there's a fire in a nearby building. I don't want that to happen, okay? I'm very optimistic, but in case of very few, so basically tell me that if there is a fire nearby your building, right, which number will you dial? So what if someone suddenly, suffer, a heart attack, or a child goes missing, or a woman is in danger? You for do you all use this number 112 for all these purposes? Do all these emergency have the same helpline number in India? What do you think? क्या इन सभी इमरजेंसीज के लिए इंडिया में सेम नंबर होता है? Like most of us will probably hesitate for a few seconds before answering this question, and during an emergency, those few seconds can make all the difference. And that is what I'm going to talk. This is the exact problem in India, which India has been trying to solve from for many years. Our country have different helpline number. For example, there is 100 100, for police, 101 for fire services, 102 and 108 for medical emergency, 1091 for women in disaster, 1098 for children, 1033 for highway emergency, and several other. So this is right confusing. If you're confused, I'm repeating that there is 100 for police, 101 for fire services, 102 and and 108 for medical emergency, 1091 for women in disaster, in distress, and 1098 for children, and 1033 for highway emergency. There are many more. So although like each number serve an important purpose, remember that all of them during a crisis often cause confusion and delay in response. So to address this challenge, the government of India has launched the nationwide emergency response system, commonly known as NERS, on 19 Feb 2019. And now what is happening, that under this initiative 112 was introduced as India's single emergency helpline, much like 911. In USA there is 112 in India. Am I making sense? Huh? So you can see that in Europe, it's you know 112 was introduced in India, 911 in USA, and 112 in India as well. So if you will observe this PPT, you can see that in 1976 and till 2012, CEPT recommend that 112 as a common emergency number across Europe. तो वहाँ पे ये 11112 जो था ये कॉमन इमरजेंसी नंबर था. So Justice J.S. Verma committee recommended to unify, the emergency system after Delhi bus gang rape case. I know that you know about that case. However, this raises an important question here, that does dialing 112 actually help in emergency? So answer is yes. Okay, the answer is yes, and this is in news. But question again is this, that क्या ये सभी स्टेट में है? So the answer is yes, but only if the state where you live has fully implemented the system. मतलब 2019 का ये system जो आया है, if it will work in your state, if you have a fully operational one. Okay, so you can read here that why 112, the rationale behind it. Let's understand this. So
Now, this naturally brings us to an important question, that why India choose the number 112. इंडिया ने 112 क्यों नहीं लिया? सिंपली 111 भी तो ले सकता था, या 999 ले सकता था, कोई और कॉम्बिनेशन भी ले सकता है ना. बट द आंसर लाइज इन द थ्री सिंपल प्रिंसिपल दैट आर इजी टू रिमेंबर, लाइक सुपर इजी टू रिमेंबर. वो है क्या? स्पीड, सेफ्टी, एक्सेस, और सिंपली यू कैन से SSA. Okay. And SSA क्या? Speed, safety and access. You can see on the screen. So let me explain each one. Like firstly we will understand what do you mean by speed. So you can see that it is fastest to dial on a rotatory phones. Digit like 112 require minimum movement, saving your precious second in emergency. So let's break it and understand. Okay, like every second matters during an emergency, you all know this. So whether someone has suffered a heart attack, a building has caught a fire जो हमने अभी डिस्कस किया, or there's a serious road accident, or there are few seconds, there are very few seconds when you can make a difference between life and death, and this is actually a concern. So when the European Conference of Postal and Telecommunication Administration, जिसको हम शॉर्ट में SCEPT कहते हैं, they recommended 112 as common emergency number in 1976. So telephone at that time used rotatory dials instead of touch screen. I hope you have seen the telephones with the rotatory dials. उसमें होते हैं ना नंबर को एक जैसे 1 डायल करके घुमाओ, फिर 2 डायल करके घुमाओ. So on those phones dialing 112 require minimum movement of dial. So it allowing people to place an emergency call more quickly than many other numbers combination, right? So those precious second could be literally saved during an emergency, because आपको भी पता है भाई कितना कम टाइम होता है उसको डायल करने के लिए. मतलब you just need a phone, and at that time 112 यूरोप में भी है, we just discussed. So it's a important concern. सेकेंड हम समझेंगे सेफ्टी. इसमें सेफ्टी क्यों है 112 में, लेट्स अंडरस्टैंड. देखो, डेलिबरेटली अवॉइड किया गया है नंबर जैसे 111999. इसको क्यों किया है? क्योंकि रिपीटेड डिजिट जो है ना, ये ईजीली डायल की जा सकती है ना. देखो, रिपीटेड डिजिट जो है वो इजीली डायल हो जाती है एक्सीडेंट के टाइम में, स्पेशली व्हेन समवन प्रेस द सेम बटन रिपीटेडली. और जब मान अगर कोई बच्चा आपके फ़ोन में खेल रहा हो, इफ़ द चाइल्ड प्लेइंग विद योर टेलीफोन, देन ही कैन इजीली डायल 111. By choosing 112 which uses different digit, the chance of accidental dialing, मतलब आप गलती से जो कॉल मिल जाता है ना, you can significantly reduce that. In other word, the number was designed in such a manner to ensure that the emergency call were intentional rather than accidental, right? Am I making sense here? So now we will move toward the next one, that is access में कैसे मदद करेगा. So one of the most important and interesting feature of 112 is that it could even work on certain locked rotatory telephones. There are some rotatory locked telephone, उसमें भी काम करता है ये. So because of the way those telephones are designed, the first two digit did not prevent the emergency call from being completed. As a result, people could still contact emergency services even when the normal access to the telephone was restricted. So even today, although how we do not we no longer use rotatory telephones, you all know this, right? So the principle remains still relevant. It is still relevant. Okay. Now on modern smartphone, 112 is still one of the quickest, easiest emergency number to dial. Remember this, particularly during the moment of stress, panic and confusion. 112 आसानी से याद आ जाएगा. So choose 112 whenever there is a situation. I don't want there that I really pray that there should not be such situation, but the the choice of 112, you can see that it's not random. It was based on carefully planning and practical design. It represents speed, safety and access. SSA. Now see here, can you see this कि काम कैसे करते हैं? See, many people think that dialing 112 simply connect them to the police.
मैं भी ऐसा सोचती थी, बट इन रियलिटी जब मैंने ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा, मतलब डिटेल में, यू कैन सी आज के ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर में है, डज डायलिंग 112 हेल्प इन ऑल द इमरजेंसी, ऑन द एक्सप्लेन पेज यू कैन रीड फ्रॉम देयर. सो लाइक मैनी पीपल थिंक दैट पुलिस कनेक्ट हो जाएगी, बट इन रियलिटी ये एक सफिस्टिकेटेड प्रोसेस है. जो हम सोचते हैं ना उससे काफ़ी ज़्यादा. It is an integrated emergency response system, that use technology, communication, and coordination to ensure that help reaches the right place as quickly as possible. सही जगह पे सही help quickly पहुंच जाए. So let's understand. So imagine that there is a person, ठीक है, जिसने who has witnessed, let's suppose a road accident, ठीक है, and immediately वो person क्या करेगा, वो 112 डायल कर देगा. The moment the call is placed, it does not go directly to the police station और हॉस्पिटल नहीं, ठीक है, पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल कॉल नहीं जाएगी. इंस्टीड पहले ये जाएगी सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, which act as the brain of the entire emergency response system. ये ब्रेन है इस पूरे उसका, सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर. सिंपल रिमेंबर, कमांड सेंटर है, कमांड देंगे यहाँ से, कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ से. सो एट द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अ ट्रेंड कॉल हैंडलर जो है, ही विल आंसर योर कॉल. प्रॉब्लम को ये सुनते हैं ध्यान से, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे, और जितनी भी इंफॉर्मेशन इनको चाहिए वो क्विकली उसको गैदर करेंगे. जैसे लोकेशन कहाँ है आपकी, क्या इमरजेंसी है, किस तरह की असिस्टेंस चाहिए, ठीक है. एट द सेम टाइम क्या होगा, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा एक डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ द इंसिडेंट. जैसे इवेंट और टिकट, इसको हम इवेंट या टिकट कहते हैं. जैसे कि आपने कॉल किया, लेट्स सपोज देयर इज अ पर्सन, ठीक है, जिसके साथ अभी एक्सीडेंट हुआ है, एंड वो पर्सन क्या करेगा, वो कॉल करता है. तो कमांड सेंटर से वो कनेक्ट हुआ ना, दे विल आस्क यू सर काइंडली टेल अस योर लोकेशन, काइंडली टेल अस दैट व्हाट काइंड ऑफ इंसिडेंट इट इज़. तो वो क्या करेंगे, द पर्सन विल टेल कि ठीक है यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हुआ है, दिस पर्सन इज बीन इंजर्ड, ठीक है, देयर इज़ नीड ऑफ इंस्टेंट मेडिकल इमरजेंसी, या फिर कोई पुलिस रिक्वायरमेंट है, राइट. सो द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने क्या किया, एनालाइज किया सिचुएशन को, एंड नाउ दे विल डिसाइड दैट विच इमरजेंसी सर्विस इज रिक्वायर्ड. एंड और क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली एक डिजिटल रिकॉर्ड भी क्रिएट हो रहा है, जिसको हम इवेंट या टिकट कह रहे हैं. अब क्या ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो इंश्योर करता है कि हर इमरजेंसी डॉक्यूमेंट हो जाए, ठीक है, और मॉनिटर हो तब जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाती. दे विल मॉनिटर ये जब तक वो रिजॉल्व नहीं होती. सो इफ़ इट इज़ अ क्राइम, ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर इशू, तो द पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल इज अलर्टेड, राइट. अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस विल बी इमीडिएटली डिस्पैच्ड. सो if it is a fire incident, the fire service will be informed without delay. So similarly, if the emergency concerns women or child, so the system can instantly connect and with specific details and specialized services, जैसे कि जिसमें वुमेन की सेफ्टी इंश्योर हो, या फिर चाइल्ड लाइन जो होगी. सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ 112 सिस्टम इज दैट all service operated on a single integrated platform. हम इसे single integrated platform कहते हैं. I told you the year. Can you tell me the year जिसमें ये आया था? हाँ, can you tell me? 2019. So the another important okay, एक बार ये समझ लेते हैं that instead of working independently, जो different department होते हैं, इन्हें communicate करते हैं एक दूसरे के साथ इसी कमांड सेंटर के थ्रू भी. जैसे कि हेल्थ और पुलिस एक साथ कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, इसी के थ्रू करते हैं, ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एक बार मैं भूल गई थी बताना, तो ना आई एम टेलिंग यू. ना अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट द यूज ऑफ GPS अनेबल्ड टेक्नोलॉजी. सो द सिस्टम आइडेंटिफाई द नियरेस्ट अवेलेबल पुलिस व्हीकल, ठीक है, एम्बुलेंस या फिर फायर इंजन जो भी पास में है, and it allow the closest response team to reach the emergency site in the shortest possible time. Obviously you need the emergency services instantly, so it does make sense that the emergency does not end once the vehicle has been dispatched. ये क्या करेंगे अब यहाँ पे, the command and the control will continue to monitor the real time, and they will track your location. इसका पता है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, ये इंटीग्रेटेड एक यूपी का एग्जाम्पल आप देख रहे होगे, तो यूपी का एग्जाम्पल बढ़िया एग्जाम्पल है इसका.
मतलब इंडिया का मोस्ट एडवांस इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे जब हम यूपी की बात करते हैं। एंड मेरे को लगता था कि ये बहुत बैकवर्ड है, पर ठीक है, यूपी इज़ मूविंग अहेड। तो सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो लखनऊ में लोकेटेड है, जहाँ से इमरजेंसी कॉल जो है वो मैनेज होती है इस पूरे यूपी के स्टेट में। सो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा, यूपी के अंदर मतलब 112 रिसीव करता है 30,000 लाइक इमरजेंसी कॉल एवरी सिंगल डे, 30,000 कॉल हर सिंगल डे टू रिस्पॉन्स इफेक्टिवली टू ऑपरेट 6,278 पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल. So what make UP model particularly impressive is that it goes beyond police service. It integrated several public services जैसे कि सिटी की सिटी सेफ सिटी लखनऊ, लखनऊ स्मार्ट सिटी, PM राहत, यू ऑल नो अबाउट PM राहत रहा ना, एक बार सर्च करना इसके बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू आर विद मी अभी तक. सो 112 सिस्टम जो है ये टेलीफोन नंबर नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन जो है इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है. सो अ सिटीजन डायल 112, द कॉल रीचेज द कमांड सेंटर. आई एम गिविंग यू द समरी. द ऑपरेटर वेरीफाई द इमरजेंसी, द इलेक्ट्रॉनिक इवेंट देन विल बी जनरेटेड, जिसको हम टिकट कहेंगे. द एप्रोप्रिएट सर्विस आइडेंटिफाई की जाएगी, फिर नियरेस्ट रिस्पॉन्स व्हीकल डिस्पैच होगा GPS के थ्रू, और कमांड सेंटर क्या करेगा, मॉनिटर करेगा इस पूरे प्रोसेस को. एम आई मेकिंग सेंस हेयर? जस्ट लेट मी नो दैट एम आई मेकिंग सेंस. Okay, moving forward, you can see that here DOT and MHA. Okay, so let's understand ये क्या होता है. Department of Telecommunication is DOT. I hope you know this. And Ministry of Home Affairs, is MHA. So who is responsible for creating and managing such a large nationwide emergency network? The answer lies in the coordinated efforts. Listen, the Department of Telecommunication is responsible for managing India's telecommunication network. इट एलोकेट्स टेलीफोन नंबर, जो आपको टेलीफोन नंबर मिला है ना अभी, जो भी आपका नंबर है ना 99 जो भी है, इट इज़ बीइंग गिवन टू यू बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. एंड क्या होता है, ये टेलीफोन नंबर को एलोकेट करता है, रेगुलेट करता है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंश्योर करता है कि सिटीज़न जो है वो रिलायबल एक्सेस मिले उन्हें कम्युनिकेशन सर्विसेज का, राइट. सो व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइड टू एस्टैब्लिश कॉमन इमरजेंसी हेल्पलाइन, ठीक है, it was the DOT that officially allocate 112 as in India single emergency number. समझ आ रहा है, सारे नंबर ये दे रहे हैं, राइट. रेगुलेट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को DOT कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं सिटीजन को रिलायबल एक्सेस मिले कम्युनिकेशन सर्विसेज का. 112 हम कम्युनिकेट करने के लिए तो यूज़ कर रहे हैं. हु विल प्रोवाइड दैट? DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. इन सिंपल वर्ड अगर हम बोले तो DOT के कम्युनिकेशन बैकबोन मान लो इसको कंट्री की, ठीक है. तो जहाँ पे भी आपको लगे कि DOT कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो DOT इन्वॉल्व है, तो ठीक है, वो ऑप्शन सही ही होगा. नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और MHA का क्या रोल है, एक बार इसको देखो. वाइल द DOT असाइंस द नंबर, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग. सो MHA क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, फायर सर्विसेज के साथ, एम्बुलेंस सर्विसेज के साथ, जितनी भी इमरजेंसी एजेंसीज है, ठीक है. सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि DOT तो इमरजेंसी नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, MHA क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म्ड कर रहे हैं इस नंबर को फंक्शनल प्रोसेस में, फंक्शनल नेशनल इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम बना रहे हैं. अब एक बार ये निर्भया फंड के बारे में समझते हैं. that many people have heard about this incident. So Nirbhaya fund is a dedicated fund जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था टू फाइनेंस प्रोजेक्ट दैट इम्प्रूव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन विच इज़ एसेंशियल. सो इट वाज एस्टैब्लिश आफ्टर अ ट्रैजिक 2012 इन दिल्ली गैंग रेप केस. 2012 में एक दिल्ली गैंग रेप केस होता है विद द ऑब्जेक्टिव टू स्ट्रेंथन द पब्लिक सेफ्टी. आफ्टर दैट इसको आया, ये मतलब प्रोजेक्ट आया था. सो द नेशन वाइड रोल आउट ऑफ 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम वॉज फाइनेंस थ्रू दिस फंड, ठीक है. 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम इसी फंड के थ्रू फाइनेंस हो रहा है. फास्ट इंटीग्रेशन करने की कोशिश करी जा रही है ताकि वुमेन प्रोटेक्ट हो, वर्नरेबल ना रहे. सो ना एक और चीज़ और समझो कि विशाखा गाइडलाइंस भी इसी से रिलेटेड आप समझ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, फिर बाद में ये बन गया था, मतलब
फंडामेंटल राइट का पार्ट बन गया, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको रीड कर लिया था कि राइट टू लाइफ में ये विशाखा गाइडलाइंस भी इन्वॉल्व है, एंड देन आफ्टर दैट देयर वाज एक्ट, ठीक है। तो वुमेन का कॉपरेट उसमें क्या सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्या प्रोसेस है, आई थिंक दैट वुमेन शुड नो अबाउट दिस, एंड आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो कि क्या क्या आपकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कैसा होना चाहिए, ठीक है। नाउ इसको लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज़ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यू ऑलरेडी नो, है ना। इट्स द ब्रेन ऑफ द एंटायर नेटवर्क, सो जस्ट इट वर्क्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। और इसमें क्या है, ऑटोमेटेड डिस्पैच सिस्टम है। सो द वर्ड डिस्पैच मीन्स सेंडिंग असिस्टेंट टू द प्लेस वेयर इट इज़ नीडेड। आई होप आपको पता ही है भाई डिस्पैच का मतलब क्या है। आपका ऑर्डर अगर डिस्पैच हो रहा है तो क्या है, आपका ऑर्डर आपके प्लेस पे आ रहा है जहाँ पे उसकी ज़रूरत है ना। सो ट्रेडिशनली दिस प्रोसेस एंटायरली डिपेंड ऑन ह्यूमन जजमेंट, like however in 2000 and in 112 emergency response system, dispatch has become largely technological driven nowadays. Every sector is become technological driven. एक कोई MCQ आता है ना, technological driven हो रहा है, you need to be aware about the trend. So the movement and operator records and emergency, तो system क्या करते हैं, automatically create कर देगा एक digital incident report को. I already told you about GPS system and all, right? So let's move to the next part. You can see the slide here that state wise status क्या है, 112 integration across India, states and UT. See, if the system is so effective, why does the newspaper headline says that its success depend on the state in which we live, लीव नहीं लिव तो क्यों ये हेडलाइन है अभी न्यूज़पेपर की? द आंसर इज़ दैट अनइवन इम्प्लीमेंटेशन है इसका कारण। हर स्टेट में अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है। ऑल्दो ये 112 इंट्रोड्यूस हुआ था पैन इंडिया इमरजेंसी हेल्पलाइन की तरह, बट हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ये इंटीग्रेटेड नहीं है, राइट। सो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, द एक्सपीरियंस ऑफ सिटीजन कैन डिफर। आपका एक्सपीरियंस अलग होगा, किसी और स्टेट के बंदे का एक्सपीरियंस अलग होगा, यूपी वालों का बढ़िया होगा, अभी हम पढ़ चुके हैं। सो बेस्ड ऑन द सबमिशन मेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, एक सबमिशन आती है सुप्रीम कोर्ट के आगे। द इम्प्लीमेंटेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की 4 कैटेगरी आप समझ लो, 4 तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया क्योंकि स्टेट्स के अलग अलग है। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ फुल्ली इंटीग्रेटेड स्टेट्स एंड यूटी। सो ये कौन से रीजन है जहाँ पे हेल्पलाइन नंबर मतलब सक्सेसफुली मर्ज कर दी गई है 112 के साथ। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट क्या कहती है कि ओनली 5 हैव अचीव द कंप्लीट इंटीग्रेशन। सिर्फ 5 स्टेट ने कंप्लीट इंटीग्रेशन ली है ना। दिल्ली, केरला, गुजरात, हरियाणा, लक्षद्वीप, एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा ठीक है, तो आई एम हैप्पी। कहीं तो हरियाणा मुझे फुल इंटीग्रेट दिख रहा है। फिर दिल्ली भी देखो वैसिनिटी में ही है, आई एम इन दिल्ली NCR। तो दिल्ली, केरला, गुजरात, हरियाणा, लक्षद्वीप तो कोई बहुत बढ़िया जगह है। अगर आपको कोरल देखने का मन हो ना, ये जूजेंथिली और कोरल पॉलिप का, इफ़ यू वांट टू सी अ सिम्बायोटिक रिलेशन, तो आपको लक्षद्वीप में ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है। एंड नाउ डेज इट इज़ एक्सपीरियंसिंग कोरल ब्लीचिंग बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बट यू मस्ट विजिट देयर। सो इन दीज प्लेसेस सिटीजन कैन रिलाई ऑन 112, है ना। जेन्युइन वन स्टॉप इमरजेंसी नंबर मिल जाएगा यहाँ पे, बुलाओ। द सेकेंड इज कैटेगरी कौन सी है कि स्टेट्स दैट आर ऑलमोस्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड। देखो फुल्ली इंटीग्रेटेड तो पता ही है, बट सेकेंड क्या है कि एक बार है ना, आप यूपी का एग्जांपल देखो। पहले तो एकदम फुल्ली इंटीग्रेटेड है स्टेट्स, है ना। मैंने 4 कैटेगरी में बोला था, 3 में नहीं बोला था, तो मैं आपको एक और बता रही हूँ। ये पहली कैटेगरी में, ये एक और स्टेट है, गुड एग्जांपल यूपी का। तो यूपी के अंदर मैंने भी बता दिया था कि सर्विसेज जैसे 112 जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करी थी। तो अब क्या है कि जो रिमेनिंग सर्विसेज है ना, वो 102 प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। ना बिकॉज यूपी इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द क्लोजेस्ट स्टेट जिसने अचीव किया ये फुल्ली कंप्लीशन। तो इसका एग्जाम्पल बनता है भाई ऑलमोस्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड है। एक तो फुल्ली इंटीग्रेटेड है, एक ऑलमोस्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड है। तो ऑलमोस्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड इज यूपी, रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी दैट पार्शियली इंटीग्रेटेड स्टेट्स, और मैंने परसेंटेज भी लिखी हुई है सामने, इफ़ यू कैन सी 14%, 46%। तो पार्शियली तो भी बहुत ज़्यादा स्टेट्स में। सो अकॉर्डिंग द सबमिशन, दैट बिफोर सुप्रीम कोर्ट 16 स्टेट्स
integrated only some emergency services. This mean that citizen may able to access 112. हर किसी को नहीं मिलेगा, हो सकता है मिल जाए। इन केसेस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है ना एक सिंगल इमरजेंसी नंबर का, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। मतलब यू आर प्रोवाइडिंग फॉर अ नेम, फॉर फेम, but it is not actually there. Now the fourth is basically most concerning. 29% states, bhai, they have no integration of this system. 10 states hai, ऐसे 10 states are there which had not carried out any integration. Now in addition, there are 3 states that had not even submitted their status report before Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था भाई करने के लिए, बट स्टेटस रिपोर्ट भी नहीं दी है 3 स्टेट्स ने। तो ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि इम्प्लीमेंटेशन ही इनकम्प्लीट है कुछ। मतलब 10 स्टेट्स तो भाई बहुत बड़ा नंबर है ना। इफ़ यू नो दैट वी आर मूविंग इन इंडिया फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, कितने लोग होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। अब इंडिया में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो व्हाट इज़ द पर्पज़? स्टेट शुड इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स, बट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि गैप्स को रिकॉग्नाइज किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि ऑल स्टेट्स और यूटी जो है वो क्या करे, टेक्निकल और ऑपरेशनल इंटीग्रेशन करे 112 का 3 महीने के अंदर। फिर कोर्ट ने एम्फेसाइज किया था कि एवरी सिटीजन शुड हैव इक्वल एंड टाइमली एक्सेस टू द इमरजेंसी सर्विसेज रिगार्डिंग लाइक वेयर दे हैव. So when we look at the overall picture, we can clearly understand the meaning that the issue is that not whether 112 is effective emergency or not. The issue is that whether every state has fully implemented. So until all UT and states completely integrated, so you can say, see, challenge is this guy is confused, 111 मिलाऊँ 111 मिलाऊँ, कौन सा नंबर मिलाऊँ। हाँ, करंट चैलेंज इज़ दैट हायरिंग हिंडरिंग फुल इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि इनकम्प्लीट इंटीग्रेशन जो हमने अभी डिस्कस किया वही सब बातें हैं। कैन यू जस्ट टेक 1 minute, pause this video and read this. I hope that I'll make sense. So moving ahead, what are the benefit of unified 112 system? अगर इंडिया में unified 112 system आ गया, if India has unified 112 system, what are the benefit that we are going to get? Faster access, coordination, safety. You know about this. आप ही बता दो कमेंट में. Take 1 minute and write. Now imagine that there is a situation when every state and UT in India सबके पास मतलब ये 112 प्लेटफॉर्म है. पहला बेनिफिट होगा फास्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जैसे यूपी के अंदर होता है, फटाफट आपको सर्विस मिल रही है. सेकंड के बेटर कोऑर्डिनेशन होगी एजेंसीज के बीच में, वो एक साथ अच्छा काम करेगी तो इंडिया सिस्टम जो है वो अच्छा बनेगा, लाइक इंटीग्रेटेड हो जाएगा. लाइक थर्ड क्या है कि पब्लिक सेफ्टी है, मतलब जीपीएस अनेबल ट्रैकिंग वगैरह है, तो पब्लिक सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. हम चूज़ क्यों करते हैं गवर्नमेंट को? वी वॉन्ट देम टू प्रोवाइड अस द सेफ्टी. पहला सेफ्टी होता है. फिफ्थ क्या है, एक एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट भी मिलता है, जो यहाँ पे हमें लिखा नहीं है, बट आप समझो कि अगर पुलिस व्हीकल और फायर इंजन या कुछ भी है ये हेल्प कर रहे हैं, नियरेस्ट अवेलेबल टीम जो है वो पहुँच रही है, तो रिसोर्सेज की बचत ही हो रही है ना. कोई फार अवे से आए तो रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे उसके अंदर. एक तो डाटा मिलेगा गवर्नमेंट को, है ना, मतलब डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डेटा मिल जाएगा तो पॉलिसी मेकिंग अच्छी हो सकती है. फिर क्या होता है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस आएगा. So if the government, I think that if the government is working on these things, they are going to get the utmost benefit. Okay, now I want the explanation about the Verma Committee, Nirbhaya Fund, Supreme Court key member. This might be your another question. तो एक बार समझ लेते हैं भाई आया कहाँ से, बैकग्राउंड क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ये चल क्या रहा है. See, the answer take us back to one of the most tragic incident in India's history, that 2012 Delhi gang rape, Nirbhaya case. The incident exposed several shortcomings in India emergency response. So the highlighted delay in help and all that, the incident, puri raat she was there and nothing happened. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीरीज ऑफ रिफॉर्म डिसाइड किए थे. तो एक सिग्निफिकेंट स्टेप किसने लिया था? जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी ने. तो जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी एक हाई लेवल कमेटी इस्टेब्लिश करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. वी नो दैट स्टेट गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश कर सकती है, सेंटर भी कर सकती है. तो सेंट्रल ने इस्टेब्लिश किया था जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी को. दिसंबर 2012 की बात हो रही है ये. अब क्या होता है, ये रिकमेंड करते हैं कि क्रिमिनल जो लॉज है ना उनको रिफॉर्म करो.
वुमेन सेफ्टी को अच्छा करो। कमिटी को चेयर जस्टिस जगदीश शर्मा वर्मा ने किया था, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे उस टाइम पे, मतलब फॉर्मर चीफ जस्टिस थे। सो अब क्या है कि टू डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स जो थे, जैसे जस्टिस लीला सेठ जो थी, द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट ऑफ हाई कोर्ट, एंड गोपाल सुब्रमण्यम, द फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये भी इसके मेंबर थे इस कमेटी के, ठीक है, और इन्होंने भी हेल्प करी थी। तो नाउ टुगेदर दीज थ्री लीगल एक्सपर्ट केयरफुली एग्जामिन इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। अब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो इनकी थी वो थी पब्लिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है। बार बार मैं बता रही हूँ, पब्लिक की इमरजेंसी हो रही है, पब्लिक को इमरजेंसी है, ठीक है, तो देयर इज पब्लिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, रिस्पॉन्स का सिस्टम बनाना है हमें। तो सिंगल इमरजेंसी टेलीफोन नंबर पे इन्होंने रिसर्च वगैरह की। 112 इफेक्टिव था। आई टोल्ड यू 112 क्यों अच्छा है ना, ऐसे अभी हमने समझा था ना शॉर्ट फॉर्म। अब निर्भया फंड के बारे में एक बार टाइम लगा के एक बार सुनो। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने इस कमेटी को इस्टेब्लिश कर लिया, बट पैसे कहाँ से आएंगे? आप सेफ्टी देने वाले हो, हर चीज़ के पैसे लगते हैं, कहाँ से आएंगे वो? तो ये क्या है कि गवर्नमेंट ने निर्भया फंड 2013 में इस्टेब्लिश किया। तो इसमें क्या है कि एक फाइनेंशियल कॉर्पस क्रिएट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो ऐसे प्रोजेक्ट को मतलब सपोर्ट करेगा जहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी वुमेन से रिलेटेड। अब ये फंड जो है ये एक फाइनेंस इनिशिएटिव है, ठीक है, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड है। पैनिक बटन के टाइम पे कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसको फंड करेंगे। और अब क्या है कि नेशन वाइड एनरोलमेंट जो हुई इस 112 की आफ्टर दिस निर्भया फंड और वर्मा कमेटी, तो अबाउट दैट कितने स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हुई है। 14 में अभी तक 14% ने फुल्ली इम्प्लीमेंट किया है। यूपी इज ऑन दी टॉप, ठीक है। सो अब एक बार समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या रूल था भाई इसमें। व्हाट इज़ द रूल? अभी हम पढ़ रहे थे ना पीछे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, तो एक बार समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ऑनरेबल एस्टेब्लिशमेंट है, और उनकी जितने भी मतलब डिसीजन होते हैं वो हमेशा हमारे वेलफेयर के लिए ही होते हैं। सो ऑल दो 112 वॉज लॉन्च इन 2019, इम्प्लीमेंटेशन कॉन्सर्न 2019 के बाद भी था। गैप सुप्रीम कोर्ट ने देखा, गैप है भाई इंडिया में। मतलब अगर आप देखो तो कंप्लीट कोई टेक्निकल और ऑपरेशनल इंटीग्रेशन दिख ही नहीं रही थी। मतलब आपने डॉक्यूमेंट्स में तो ला दिया, बट वेयर इज़ द इम्प्लीमेंटेशन? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो 3 महीने तुम्हारे पास, यू प्लीज़ इम्प्लीमेंट दिस। कोर्ट एम्फोसाइज दैट इमरजेंसी असिस्टेंस शुड नॉट डिपेंड ऑन where a citizen live. Every individual, irrespective of state and UT, should have equal access to the fast and efficient this in integrated emergency response system. So we can understand this now that 112 क्या है, 3 implement stage में आया। मतलब पहले तो निर्भया इंसिडेंट, देन जस्टिस JS वर्मा कमेटी, फिर उसके बाद देर वॉज निर्भया फंड, एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया कि स्टेट जो है वो कंप्लीट इंटीग्रेशन की तरफ मूव करे, जो कि अभी भी मतलब इट हैज़ टू बी अचीव, राइट। ओके, now let's understand the next part, that June 28 2023 and 3-month mandate. Let's understand this, ठीक है। जून 28 2023 में क्या हुआ था, और नेक्स्ट स्टेप भी समझेंगे चेकलिस्ट का, दैट इज़ सिस्टम अपग्रेड, रिपोर्टिंग, ऑडिट, ट्रेनिंग, पब्लिक अवेयरनेस, स्टेट कोऑर्डिनेशन, कंप्लायंस, कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ 112 अक्रॉस 38 ऑल ये स्टेट गलत दे दिए इन्होंने, मतलब हाँ ठीक है, यूटी और स्टेट को मिला के 36 लिख रखा है। मैंडेटरी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। वही बात है जो अभी हमने डिस्कस करी थी, सिमिलर, राइट। तो बेसिकली जो 28 जून 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन इशू कर दी थी। क्लियर? नाउ व्हाट इज़ द फ्यूचर आउटलुक 112 इन इंडिया विजन, क्या है ये? व्हाट डू यू थिंक? एक सेकेंड लो एंड टाइप इन द कमेंट बॉक्स दैट व्हाट डू यू थिंक। So see, as we look ahead, the vision of 112 emergency response system extend far beyond a single emergency telephone number, right? So the government long term vision is one India, one emergency number. The objective is to create a uniform, technology driven, citizen centric emergency response system, and I hope that you understand this. And in the coming year we expect complete nationwide integration कि सभी states और UT जो 36 हैं वो implement करें इसे,
एंड जीपीएस मैपिंग वगैरह के लिए मतलब सैटेलाइट वगैरह शुड बी वर्क अकॉर्डिंगली, बिकॉज अगर मतलब क्या है कि अगर आप ऊपर अपने वो भेज रहे हो, नाविक सैटेलाइट भेज रहे हो, एटॉमिक क्लॉक की फेल हो रही है, देन द रियल टाइम इट विल नॉट गिव द इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम, एंड दिस इज़ अ कंसर्न. अनदर इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी के ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस शुड बी देयर, राइट. पब्लिक को ही नहीं पता 112 के बारे में. आपको पता था? नहीं पता था ना, अवेयरनेस ही नहीं है. हमें मतलब स्कूल में ही होना चाहिए ना ये तो मतलब टॉपिक. सेफ्टी इज़ अ कंसर्न. गवर्नमेंट कुछ कर रही है, हाउ विल वी नो बाय एनसीईआरटी. एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे लिख दो भाई. So ultimately 112 is not merely about answering emergency call. It's about safety, resilience in India, all that. So thank you for your patience here. I hope you understand. This is the summary. You can see what you can take away. Take a screenshot that how we'll go ahead. I hope this discussion was meaningful, and I'll see you in the next discussion on our next topic in news. Okay, do subscribe and share my this initiative, and along with that I'll honor you if you can subscribe to this channel, because subscription में क्या जाता है कि हमारा सिर्फ 1 सेकेंड ही तो गया है ना, when the other person can achieve something. So initiative को हमेशा appreciate करना चाहिए. This principle in life will give you enough. That's all from my side. Thank you.